Morning student. Today we start जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन से रिगार्डिंग जो जनरल एंट्री है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं. एंट्रीज फॉर परचेजिंग असेट्स, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एंड फॉर सेल ऑफ असेट्स टू बी पास्ड इन अ ईयर कैन बी नोन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल्स. सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, जनरल एंट्री. ऑन परचेजिंग एन असेट्स, when a businessman purchases an assets, he passes general entries in his book, assets account debit to cash account or bank account or vendor. If he purchase cash, then he credit the cash account. If he purchase by check, then he credit his bank account. And if the businessman purchase the assets on credit, then he credit the vendor account. Narration being assets purchased. To charge depreciation on assets, depreciation account debit to assets. To transfer depreciation account, जब हम depreciation को transfer करते हैं, profit and loss account debit to depreciation account. On selling an old assets, cash account debit to assets account. Fifth, to adjust profit on sale of old assets, assets account debit to profit and लॉस अकाउंट. जब हम अगर किसी ओल्ड मशीनरी को सेल कर रहे हैं और उस पर अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑन एडजस्ट लॉस इफ़ एनी ऑन सेल इफ़ ओल्ड असेट्स, अगर हमको लॉस हो रहा है अगर हम ओल्ड असेट्स को सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट. 7, टू रिकॉर्ड इरेक्शन चार्जेस paid at the time of purchasing an assets account debit to cash account. 8, to record repair charges paid to bring an old machine into the working condition, assets account debit to cash account. Now I explain you to preparation of depreciation account. depreciation account हमारा बनता है depreciation account, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट. टू असेट्स, जो ईयर होगा वो डेट डाल देंगे. टू असेट्स मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग अमाउंट डालेंगे और बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके क्लोज कर देंगे. इधर टू असेट्स, इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाउ वी स्टार्ट अवर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. हमने देखा था कि 14 मेथड्स होती है डेप्रिसिएशन की, बट 11th के सिलेबस में आपको ओनली 2 मेथड्स को पढ़ना है. फर्स्ट है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड सेकंड इज रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड. रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड मीनिंग एंड डेफिनेशन. अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस ऑफ द असेट्स by calculating depreciation on the reducing balance every year. The amount of depreciation also reduce, यानी जो depreciation की amount है वो भी reduce हो जाती है. Therefore under this method amount of annual depreciation is not equal. तो जो depreciation की amount है equal नहीं होती है. Like the fixed installment assets, in fixed installment assets we write of same depreciation in every year, but in reducing balance method every year new balance is found and depreciation is calculated on new balance. Therefore the annual depreciation is not equal in the whole life of assets. In the first year depreciation is charged on the total purchase cost and thereafter the following years on decreasing book value. जितनी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है उस पर हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है. डेफिनेशन है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड की. व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द फिक्स असेट्स एंड एट इट्स ओपनिंग बुक वैल्यू एवरी ईयर एट अ फिक्स रेट, then such method of depreciation is called written down value method. The another name of reducing installment method is written down value method. Characteristics of reducing installment method. First, depreciation is calculated under this method on the reducing opening balance every year. एवरी ईयर जो हम डेप्रिसिएशन माइनस करके जो बैलेंस फाइंड करते हैं, जो रिड्यूसिंग ओपनिंग बैलेंस होता है, जो हम बैलेंस फाइंड करते हैं उसी को ब्रॉट डाउन करके नीचे लेकर के आते हैं. तो ये जो ब्रॉट डाउन करके नीचे लेकर के आते is called reducing opening balance. So we calculate the depreciation on reducing opening balance in every year.
Then we charge again depreciation. We find reducing balance method. Then we brought down in new year reducing balance method and calculate the new depreciation in every year, and depreciation will be decrease in every year. Second, amount of annual depreciation keep on reducing every year. जो डेप्रिशिएशन की अमाउंट है वो रिड्यूसिंग होती है एवरी ईयर, बिकॉज द वैल्यू रिड्यूस हो रही है. वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो डेप्रिशिएशन भी उस पर चार्ज हो रहा है, तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, डेप्रिशिएशन इज कैलकुलेट एवरी ईयर एट अ फिक्स परसेंटेज रेट. रेट इज़ फिक्स 10%, 5% रेट फिक्स होती है, बट अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन इज चेंज इन एवरी ईयर. फोर्थ, द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन इज़ अनइक्वल एवरी ईयर. एवरी ईयर जो अमाउंट है वो अनइक्वल होती है. इन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन इज़ इक्वल इन एवरी ईयर. फिफ्थ, डेप्रिशिएशन इज चार्ज ऑन द परचेज प्राइस इन द ईयर ऑफ परचेज. फर्स्ट ईयर जब हमारा मशीनरी अकाउंट स्टार्ट होता है तो हम डेप्रिशिएशन जो चार्ज करते हैं वो परचेजिंग प्राइस पर करते हैं. परचेजिंग प्राइस दैट मीन्स कॉस्ट. कॉस्ट का मीनिंग परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस प्लस फ्रेट एंड कैरेज. 6, दिस मेथड इज अप्रूव्ड अंडर द इनकम टैक्स लॉ. रिड्यूसिंग बाय इंस्टॉलमेंट मेथड अप्रूव्ड होती है इनकम टैक्स लॉ में, बट फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड इज नॉट अप्रूव्ड इन इनकम टैक्स लॉज. अनदर नेम्स ऑफ रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. नेम हमको लर्न करना पड़ेंगे बिकॉज न्यूमेरिकल किसी भी नेम से आ जाता है. नाउ वी स्टार्ट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स. हमारे जो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो रहे हैं उनमें हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स. अभी तक जितने न्यूमेरिकल्स करे थे उनमें सिर्फ मशीनरी परचेज़ की थी. अब जो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे उनमें मशीनरी सेल भी होगी, और जब मशीन सेल होती है तो हमको कैलकुलेट करना पड़ता है कि हमको ऑन सेलिंग ऑफ मशीनरी प्रॉफिट है या लॉस है. तो इसका व्हेन एन असेट्स इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर देयर मे बी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. दिस प्रॉफिट और लॉस इज़ ऑफ अ कैपिटल नेचर. टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, डेप्रिशिएशन टिल द डेट ऑफ सेल एंड सेल वैल्यू शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द असेट सोल्ड. जो भी हमारी वैल्यू आती है आफ्टर द डिडक्शन ऑफ डेप्रिशिएशन, उसको हमने मशीन जितने में सेल कर दी है माइनस करते. सच प्रॉफिट शुड बी यूज टू एडजस्ट द कैपिटल लॉसेस. इफ़ ऑन सेलिंग ऑफ मशीनरी वी अर्न प्रॉफिट, देन सच प्रॉफिट इज शुड बी यूज टू एडजस्ट द कैपिटल लॉस. बिजनेस में अगर कैपिटल प्रॉफिट होता है तो कैपिटल लॉस भी होता है, तो बिजनेसमैन कैपिटल प्रॉफिट को अलग रख देता है. इफ़ अगर कोई सा कैपिटल लॉस राइज होता है तो हम उसको वहाँ से माइनस कर देते हैं. इफ़ लॉस इज लेस देन सच एन अमाउंट कैन बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर हमारा लॉस कम होता है तो हम उसको P&L में डाल देते हैं, बट इफ़ लॉस सो हाई तो हम इसको डेबिट कर देते हैं. इट शुड बी ट्रीटेड लाइक डेफर्ड रेवेन्यू लॉसेस. अगर हमारा लॉस बढ़ा है तो हम उसको डेबिट कर देंगे, अगर हमारा क्रेडिट बढ़ा है तो हम उसको माइनस कर देंगे. तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के. अब हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे. इलास्ट्रेशन 9 से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. नाउ वी स्टार्ट आवर इलास्ट्रेशन 9. ऑन 1st January 2015 a machine was purchased for ₹19,400 and ₹6,000 were spent on its carriages and fittings. It was decided to provide depreciation at the rate of 10% per annum. By reducing installment method, prepare machinery account for the first 3 years. Machinery account
that particular amount. First, we purchased a machinery on 1st January 2015 to cash. Purchase price is 19,400 and 600 were spent on its carriage and fitting. So cost is our machinery is 20,000. अब डेप्रिशिएशन हमने फाइंड किया 10% पर एनम में. 1 जनवरी को हमने मशीनरी परचेस करी है, दैट मीन्स हमने उसको पूरे ईयर यूज़ कराए. तो 2015 दिसंबर 31 बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट 20,000 का 10% इज ₹2,000. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000. 20,000 में से 2,000 माइनस करा. 2016 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000. ये हमारा रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड का क्वेश्चन है. और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड में जो डेप्रिशिएशन चार्ज होता है वो हमारा ओपनिंग रिड्यूसिंग वैल्यू पर होता है. नाउ वी चार्ज द डेप्रिशिएशन ऑन 18,000 इंटू 10% 1800. बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट 1800. दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD 16,200. we subtract 1800 in 18,000, so our balance is 16,200. Now we brought down the balance on 2017 January 1 16,200. Now we depreciate the balance 16,200 at the rate of 10%. So 16,200 into 10% is 6210. Then 2017 December 31 by depreciation account 1620. Now we find our balance 16,200 में से माइनस करा 1620. 14,580 is our balance on 31st December 2017. We brought down our balance on 2018 January 1 to balance brought down 14,580. तो ये जो हमारी मेथड होती है ये हमारी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होती है जिसकी अभी हमने थ्योरी पढ़ी. इसमें एवरी ईयर हमारा डेप्रिशिएशन अनइक्वल है और रिड्यूस हो रहा है. पहले लगा 2,000, फिर हमारा आया 1800 1620. एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन इज़ रिड्यूस हो रही है. तो दैट इज़ द आवर मेथड ऑफ रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, reducing balance method, written down value method. Now we start the difference between the fixed installment method and reducing balance method. Difference between fixed installment and reducing balance method. Serial number, basis of differences, fixed installment method, reducing balance method. Basis of difference, calculation of depreciation. Depreciation is calculated on the original cost. जो fixed installment method में depreciation charge होता है वो original cost पर होता है. Reducing balance method, depreciation is calculated on the remaining balance और ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स. ओपनिंग बुक वैल्यू पर लगता है हर साल जो हमारी रिड्यूसिंग अमाउंट आती है उस पर डेप्रिशिएशन चार्ज होता है. सेकंड डिफरेंस इज वेरिएशन इन डेप्रिशिएशन अमाउंट. द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिशिएशन रिमेन सेम. जो अमाउंट है हमारी डेप्रिशिएशन की वो थ्रू आउट द ईयर हर साल हमारी सेम रहती है. Amount of annual depreciation keeps decreasing. Every year the amount of depreciation is decreased. Third, balance at the end of the life. Under this method, balance of assets accounting is either equal to 0 or equal to scrap value at the end of the life of an assets. इस method में जो हमारे at the end of the life the value of assets is equal to 0 और the scrap value of machinery उतनी ही हमारी बचती है. According to this method, balance of assets can never be equal to 0. When we apply the reducing balance method, then
after the life of assets, the balance of machinery account is not equal to 0. कुछ ना कुछ बैलेंस यहाँ पर रिमेनिंग रहता है. Rate of depreciation. Rate of depreciation is not kept high. Rate of depreciation is normally kept high because every year जो reducing balance आ रहा है उस पर depreciation charge होता है. If the rate of depreciation is low, then the amount of depreciation is every year is decreasing, and then a big amount is remain on the finishing of the life of assets. Next है burden on profit and loss. Burden or repair and depreciation is not quotable under this method. Burden of total cost running the assets is almost quotable. इसका हम burden आता है, इसका नहीं आता. Applicability. This method is adopted on the assets which are of less value and repair cost is incurred of them. ये मेथड हम वहाँ पर अडॉप्ट करते हैं जहाँ पर लेस वैल्यू एंड रिपेयर कॉस्ट इज़ इंक्रेड ऑफ देम, यानी कि जो रिपेयर के चार्जेस भी होते हैं. दिस मेथड इज़ मोर सुटेबल फॉर दोज असेट्स विच लॉस देयर यूटिलिटी ग्रेजुअली, जहाँ पर ग्रेजुअली उसकी वैल्यू कम होती है. एंड हैवी रिपेयर कॉस्ट इज़ इंक्रेड ऑफ देम, और उनके ऊपर हैवी रिपेयर चार्जेस अप्लाई होते हैं. वैलिडिटी. This method is not approved by income tax laws. This method is approved by the income tax laws, and tax rebate is given on depreciation calculated by this method. Predictability. Some depreciation is charged even when the assets is of less value. कुछ ना कुछ depreciation charge होता है चाहे हमारी वैल्यू कम हो गई हो. As the utility of the assets reduce, the amount of depreciation keep on decreasing. अब हमारा जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, इससे हम जो हमारा दोनों मेथड को हम एक साथ करेंगे, फिक्स और डिमिनिशिंग, जिससे कि हमको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है. इलस्ट्रेशन 11. A company purchased a machinery for rupees 50,000. It was decided to depreciate the machinery at the rate of 10% per annum. एक मशीन हमने परचेस करी है 50,000 की, और उस पर जो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन है 10%. शो द बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी आफ्टर 3 years बाय यूजिंग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. हमको एक ही सम में दोनों मेथड्स को यूज़ करना है. हमने अपना फॉर्मेट बनाया, डेट, पर्टिकुलर, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. दोनों मेथड एक साथ हम यूज़ करेंगे. डेट, पर्टिकुलर, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. फर्स्ट ईयर व्हेन वी परचेज द मशीनरी we write the to cash account 50,000 50,000. In both method same purchase price or cost price written in first year. Then rate of depreciation is 10%. So first year depreciation is 50,000 into 10%. Buy depreciation account 5,000 5,000. Buy balance CD 45,000 45,000. Now we brought down our balance in second year. Second year two balance brought down 45 45. Now second year by depreciation in fixed installment method, the depreciation is fixed every year, so we write the 5,000 as a depreciation. But in diminishing balance method, every year we find the depreciation on reducing balance. So in diminishing balance method we charge the depreciation on 45,000. So 45,000 into 10% is rupees 4500. So in diminishing balance method we note that our depreciation is reduced because not the fixed depreciation is charged. Depreciation is charged on balance. So
4500 into 10% is rupees 4500. Now at the end of the second year we find our balance. So 45,000 minus 5,000 is rupees 40,000 and 45,000 minus 4,500 is 40,500 is the balance at the end of the second year. And in fixed installment method and diminishing balance the balances of machinery assets is differ. दोनों में अब जो बैलेंस था वो अलग अलग हो गया. इन फर्स्ट ईयर सेम डेप्रिशिएशन इज चार्ज इन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इन डिमिनिशिंग मेथड. बट इन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड सेकंड ईयर से हमारा जो डेप्रिशिएशन चार्ज होगा वो जो बैलेंस हमारा माइनस होके आया है उस पर चार्ज होगा. तो हमारा डेप्रिशिएशन चेंज हो जाएगा. नाउ वी गोइंग ऑन आवर थर्ड ईयर. थर्ड ईयर में सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमने बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया है 40,000 एंड 40,500. एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट इन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड we charge the same depreciation every year, so we write the 5,000 as a depreciation. But in diminishing balance method we charge the depreciation on reducing balance, and reducing balance, opening reducing balance. So opening reducing balance is 40,500 and 10% of 40,500 is 4050. So 4050 is the balance in diminishing balance method. Now we find our balance by balance CD. 40,000 minus 5,000 is 35,000 and 40,500 minus 4050 is 36,450. So our balances is differ. We maintain the machinery account for 3 years and we notice that the depreciation is reducing in reducing balance method and balance में दोनों में डिफरेंस आ गया है. तो ये हमारा मेथड यहाँ पर हमारी फिनिश हुई. Now we move on advantages or merits of reducing by installment method. जो हमने अभी आज एक्सप्लेन की है, समझिए. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के एडवांटेज है. साइंटिफिक मेथड है, अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स लॉ. साइंटिफिक मेथड है. इक्विटेबल बर्डन, हमारा जो बर्डन है वो इक्वल होता है. इजी कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन इजी होती है. बैलेंस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. इन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट द एंड ऑफ द लाइफ जो बैलेंस होता है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है. अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ से ये अप्रूव होता है. डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स ऑफ रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड. हाई रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, जो डेप्रिशिएशन की रेट होती है वो हाई होती है. इग्नोर्स इंटरेस्ट, इट डज नॉट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन द असेट्स. जो असेट्स पर हमने कैपिटल लगाई है उसके इंटरेस्ट को ये इग्नोर कर देता है. वैल्यू डज नॉट रिड्यूस टू ज़ीरो, वैल्यू कभी भी रिड्यूस होकर ज़ीरो के बराबर नहीं होती है. लेक ऑफ रिप्लेसमेंट, इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर अ रिप्लेसमेंट ऑफ द असेट्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ. फिफ्थ, डिफ़िकल्ट टू एसर्टेन द ओरिजिनल कॉस्ट. ओरिजिनल कॉस्ट इसमें निकालना डिफ़िकल्ट होती है. डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन भी डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि इन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड हम एक बार जो डेप्रिशिएशन निकालते वही पूरे साल हमारा लगता रहता है एवरी ईयर. बट यहाँ पर हमारा जो बैलेंस है वो चेंज हो जाता है. तो आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को पढ़ना है. इलास्ट्रेशंस आपको करना है. प्लस मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 16 इज़ होमवर्क. Question number 10 is homework. 2 question is homework of today.